रहे अमर रहे अमर रहे भगत सिंह अमर रहे इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 আমার তরফ থেকে আগামী পয়লাকে আমি এই জামাটা ও টাকাটা উপহার দিচ্ছি যাতে সে পুজোতে আনন্দ করতে পারে। আমি একটা আমার ছোট বোনকে এই জামাটা দিতে চাই, সে যদি পুজোতে এই জামাটা পরে আনন্দ করে। আমার তরফ থেকে একটা ছোট্ট বোনকে আমি এই জামাটা ও টাকাটা উপহার দিচ্ছি যাতে সে পুজোতে আনন্দ করতে পারে। আমার নাম টাপু। আগামী 1 অক্টোবর আমার জন্মদিন, সেই উপলক্ষে আমার ছোট বোনদের জন্য এই ছোট্ট উপহার। আমার নাম নীল। আগামী 12 নভেম্বর আমার জন্মদিন, সেই উপলক্ষে ছোট্ট ভাইদের জন্য এই ছোট্ট উপহার। আমি বীরভূম জেলার রামপুরহাট থেকে একটু দূরেই বর্ষা বলে গ্রাম আছে, সেই গ্রাম থেকে বলছি। হরিভূমি এনজিওর তরফ থেকে এক ছোট্ট একটা প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে যে সেখানে কিছু মাতা পিতাদের জন্য বস্ত্র বিতরণ করা হবে। তার জন্য আপনাদের কাছে আমরা হরিভূমির তরফ থেকে কিছু অর্থের সাহায্যের জন্য আবেদন করছি। আপনাদের অর্থের যে সহযোগিতা আসবে সেই অর্থের বিনিময়ে হয়তো অর্থটা ছোট হতে পারে, কিন্তু সেই ছোট অর্থের মাধ্যমেই হয়তো অনেক লোকের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে। তার জন্য আমরা হরিভূমির তরফ থেকে আপনাদের কাছে কিছু সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আপনারা স্লোগান শুনলেন, আপনারা 4টে বাচ্চাকে একসাথে শুনলেন, তারপরে ইন্ডিভিজুয়ালি শুনলেন। যখন একসঙ্গে শুনলেন তখন কিছু বুঝতে পারেননি অবশ্যই, কিন্তু যখন একা একা শুনলেন তখন বুঝতে পারলেন তারা কি কাজটা করতে যাচ্ছে। এই রকম বাচ্চাদের ব্যাংক, হ্যাঁ, শ্যামলদা পেরেছেন। শ্যামলদা বড়দের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেটা হলো যে বাচ্চারাও এই লড়াইয়ে জয়েন করে গেছে। এটা তো লড়াই না। তারা যখন বড় হবে তারা এমন একটা সিস্টেম তৈরি করবে আমাদের মতন বড়দের হাত দিয়ে, যে সিস্টেম তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে, যে সিস্টেম চাকরি চাওয়ার জন্য রাস্তায় অনশন করবে না, আমৃত্যুর প্রতিজ্ঞা করে রাস্তায় বসে যাবে না। সে অর্জুন কবে বলেছিল ওকে না মারলে আমি প্রাণ দিয়ে দেব, কিন্তু তাকেও মারতে পারিনি, নিজেও মরেনি, সবাই একসাথে বেঁচে আছি আমরা। অর্জুনও রয়েছে, ভীষ্মও রয়েছে, দ্রৌপদীও রয়েছে, ধৃতরাষ্ট্রও রয়েছেন, সবাই রয়েছেন। মহাভারত আবার চলছে। এই মহাভারতের মধ্যে একটা বহুচক্র আছে, যে বহুচক্রে অভিমন্যু ঢুকে মারা গেছিল। যদি অভিমন্যুকে বাঁচানো যায়, আমাদের লড়াইটা সেটা। আজকে বলতে খুব ভালো লাগছে যে বলে না সকালবেলা যে আপনি দাঁত মাজেন, সেইখান থেকে রোজ সকালবেলা একজন করে কোটিপতি তৈরি হয়ে যায়। বিশ্বজুড়ে মানুষ দাঁত মাজছে, একটা কোলগেট, একটা অমুক কোম্পানি বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই ভারতবর্ষের, স্বাধীন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ, মিডল ক্লাসের মুভমেন্ট কী হবে? লক্ষ্মী সেহগল তো একটা বড় নাম, যিনি ঠিক করেছেন। নেতাজি বলছেন আপনি চলো আমাদের সঙ্গে চলে চলো, বলছেন না আমি পেশেন্টকে দেখে তারপর তাদের কেয়ার নিয়েই যাব। আমরা কিন্তু অত বড় বড় নামের কথা বলছি না, মাতঙ্গিনী হাজরার কথা বলছি না, রানী রাসমণির কথা বলছি না। সাধারণ গৃহবধূরা যারা বাড়িতে রয়ে বারবার করে ভাবেন স্বামীদের কি করে বাঁচাবো, ছেলেদের চাকরি কি করে দেব, এবং দেশের ভবিষ্যৎ কি করে গড়ব, তারা কি মাসে 1 দিন 3 ঘন্টা সময় বার করতে পারবেন না? আমি একমাত্র গৃহবধূদের বলছি, যারা চাকরিজীবী ভদ্রমহিলারা তারা প্রায় পুরুষদের মতন হয়েই গেছেন। সারাদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে বই পড়া, গান শোনা, মোবাইল ঘাটার থেকে ব্যস্ত থাকার জন্যে তারা হয়তো দেশের কাজে লাগছেন না। তাই দেখবেন তাদের হাত ধরে কোনো প্রতিবাদ গড়ে উঠছে না, কোনো আর্থিক মুভমেন্ট গড়ে উঠছে না। সুন্দরবনের মায়েরা সে জায়গাটা পাচ্ছেন না। আর একটা কথা বলে রাখি, দেখবেন বৃষ্টি হওয়ার পরে যখন বন্যা হয়ে যায় তখন আমরা তড়িঘড়ি করে গাড়ির পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচা করে চলে যাই। এটা আপনাদের স্টুপিডিটি মনে হয় না? আপনি তো জানেন যে জুন মাসে বর্ষা হবে, নাও হতে পারে, কিন্তু ধরে নিন সুন্দরবনে বর্ষা হবেই। ওই 24 পরগনার ওই এলাকাগুলো ডুবে যাবে, প্রচুর লোকের ঘর চলে যাবে। তাহলে আমরা যদি মার্চ, এপ্রিল, মে মাস থেকে যদি আমরা পরিকল্পনা শুরু করি, মে মাসে নর্মাল টাইমে চলে যাই, বাড়ি বাড়ি যদি প্লাস্টিকগুলো দিয়ে আসি, শুকনো খাবারগুলো যদি দিয়ে আসি, কাঠ দিয়ে আসি, ত্রিপল দিয়ে আসি, ডান্ডা দিয়ে আসি, হাতুড়ি দিয়ে আসি, পেরেক দিয়ে আসি, যদি আমরা তখন থেকে রেডি হয়ে যাই, তারপর যখন বর্ষা হবে তখন আপনাদেরকে আর যেতে হবে না।
আপনারা যদি সোলার দিয়ে আসেন তাহলে অন্ধকার হলেও সেখানে লাইট জ্বলবে। একটু ভাবুন অ্যাডভান্স ওয়ার্নিং সিস্টেম। এই অ্যাডভান্স ওয়ার্নিং সিস্টেমটা হতে যার জন্য কোনো টেকনোলজি লাগবে না, আপনার বুদ্ধিটি লাগবে। আমাদের যে ভগবান এখানে যে বুদ্ধিটি দিয়েছে, সেই বুদ্ধি দিয়ে যে আমরা গরিব তৈরি হলাম, পার্লামেন্টেরিয়ান ডেমোক্রেসিটাকে ফলো করতে গিয়ে, আমি বলছি না তাকে তুলে দাও, কিন্তু ভারতবর্ষের সবকটা অঞ্চলে, যেমন তরুণদা গান করছিলেন, তো তরুণদাকে আমি সরিয়ে দিয়ে শুধু বাচ্চাদেরকে দেখালাম। এই তরুণদা ধরুন মানিকতলায় 5 লাখ গরিব মানুষ, 5 লাখ গরিব মানুষ ইন্টু 1.5 কোটি টাকা পার মান্থ, তাহলে এই তরুণদা কালকে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ বা প্রাইম মিনিস্টার হতে পারেন। যদি সোশ্যালিস্ট মুভমেন্টে আমরা বিলিভ করি, তাহলে সোশ্যালিজম তো গ্রাসরুট থেকে আসবে, মাথার উপরে মোদিকে চেঞ্জ করে তো আসবে না। সেটা তো ভেরি ক্লিয়ার যে মোদি অ্যান্ড ট্রাম্পকে চেঞ্জ করে দিলে ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর কোথাও সোশ্যালিজম আসবে না। কিন্তু 5 লাখ লোক 30 টাকা দিচ্ছে একটা ওয়েবসাইট খুলে, রেজিস্টার মেনটেন করে, তাদের টাকায় গ্রামের লোকেরা, চাষিরা স্যালারি পেয়ে যাচ্ছে, মানিকতলার কিছু মানুষ কর্ম পেয়ে যাচ্ছেন, কাজ পেয়ে যাচ্ছেন, জব পেয়ে যাচ্ছেন, এবং আমরা বুঝতে পারছি এখানকার ইনকাম থেকে 1% তারা আবার ট্রান্সফার করছেন এই ফান্ডে। 20% ডেভেলপমেন্ট, 20% চাকরি। তার মানে তরুণদার মতন হাজারো হাজারো মানুষ মানিকতলাতে চাকরি পেয়ে গেলেন। আপনি ভাবুন এইভাবে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে যে কাজটা শ্যামলদা প্ল্যান করে, স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্ল্যান করে করছেন, যে নরেশদা এই কথা বলতে যাচ্ছি, এই মিটিং করতে যাচ্ছি। কনসেপ্টটা কি? কনসেপ্ট হচ্ছে সোশ্যাল ব্যাংকিং। সোশ্যাল ব্যাংকিং হচ্ছে পুরোনো খবরের কাগজ, খাতা, বই সব ওয়েস্ট জমা করা, তার সঙ্গে কাপড়ও ঢুকে গেল, অথবা টাকা দেওয়া। প্রত্যেকটা মানুষ যেমন ট্যাক্সের টাকায় গভর্নমেন্টকে রিচ করলো এবং তারা কোটি কোটি কোটিপতি হয়ে গিয়ে অ্যাডও দিল, ভারতবর্ষের গরিবীকে দেখিয়ে তারা অ্যাডও করে। এত কিছু করার পরেও আমাদের ভারতবর্ষে কোনো চেঞ্জ আসবে না 100 বছরেও, যদি আমরা মনে করি যে নীতিশ কুমার একটা চেঞ্জ এনে দেবেন। আমাদের গর্বের ভারতবর্ষে চেঞ্জ সেদিনই আসবে যখন তরুণদা যাদেরকে নিয়ে কাজ করছেন, শ্যামলদা যাদের নিয়ে কাজ করছেন, এই যে 4টি বাচ্চাকে দেখতে পেলেন, এবং আপনার বাড়ির বাচ্চা, আপনার পাড়ার বাচ্চা, আপনার দুর্গা পুজো যে মায়েরা করবেন, যে সাধারণ গৃহবধূরা করবেন সাদা শাড়ি লাল পাড় পরে, তাদেরকে বলছি যে আপনারা দেশে চেঞ্জ আনতে পারেন। আজকের বক্তব্য খুব ছোট করে রাখলাম, শুধু ভাবতে থাকুন। হরিভূমি বলে একটি সংস্থা যারা ওয়েবসাইট করেছে, যেটাকে আমি অনলাইন মন্দির বলছি। আর একটা কথা বলতে খুব ভালো লাগছে, আমাদের দেশে প্রচুর জাতপাতের লড়াই আছে। ইস্ট বেঙ্গল একটা জাত, তো ইস্ট বেঙ্গলের যে ফ্যানেরা, তারা কি ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের পাশে দাঁড়ায়? মোহনবাগানের ফ্যানেরা কি মোহনবাগান ক্লাবের পাশে দাঁড়ায়? মহাবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের ফ্যানেরা কি মহাবাগান স্পোর্টিংয়ের পাশে দাঁড়ায়? ব্যানার্জি ব্রাহ্মণরা কি ব্যানার্জিদের পাশে দাঁড়ায়, গরিব ব্যানার্জিদের পাশে দাঁড়ায়? সেরকম জৈনরা কি জৈনদের পাশে দাঁড়ায়? কালকে এটা নিয়ে একটা एलाबोरेट मीटिंग हलो, एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ जेंट्स लोग को लेकर, रिच जेंट्स लोग को लेकर नहीं, मिडिल क्लास जेंट जो लोग 100 से 300 रुपया महीना दे सकेंगे। एंड ऑल ओवर इंडिया अगर हम लोग एक सोशल अकाउंट खोलते हैं, सो यू कैन डोनेट ऑनलाइन, वी कैन हेल्प ऑनलाइन, जिसको भी हेल्प चाहिए हेल्प करेंगे। 20% इंडस्ट्री बनाएंगे और 20% में हम लोग सैलरी देंगे। अगर ये काम हम लोग कर सकते हैं, सो व्हाट अ बिग वर्क कैन वी डू। कल आप लोगों ने एक डिसीजन लिया, हम सब लोगों ने मिलकर, जो केवल जी बोले, जो 10-10 जन करके हर जगह से हम लोग मेंबर बना के अपना ही एक तो वेबसाइट खोलें, फेसबुक में आकर पेज खोलें। हमको थोड़ा दूसरा एडवाइस देना था, जो हम इस प्रोग्राम के माध्यम में ही दे रहे हैं, कि अनिल लोधा जी महाराष्ट्र में 4500 वकील लोग को लेकर काम कर रहे हैं। तब वो लोग अगर अभी 100 रुपये करके देते हैं, तो 30-35 हज़ार वेबसाइट के ऊपर खर्चा करना कोई बड़ा बात नहीं होगा। अगर ये वेबसाइट खुल जाता है तो हर रोज़ हमको वीडियो बनाने में कोई बड़ा बात नहीं होगा। उसके साथ हमारा फेसबुक पेज रहेगा, ट्विटर पेज रहेगा, लिंक्डइन का पेज रहेगा, जहाँ जहाँ ऑनलाइन में ज़रूरत है वहाँ पर रहेगा। एंड वी विल पर्सनली कम्युनिकेट विथ पीपल। अगर ये वेबसाइट हो जाता है, अगर वो आकर ऑनलाइन में पेमेंट कर सकता है, तो इसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने जो बोला, जो लोग बाग इसमें जुड़ेंगे क्या नहीं, अब ये सोचकर ही चलिए, जो रिच पीपल नहीं जुड़ेंगे, बट जो मिडिल क्लास है, जिसको नौकरी चाहिए, जो आपके प्लेटफॉर्म में आकर ही बोल रहे हैं हमको काम दो, हम लोग उनको जोड़ पाएंगे। जो ये पॉपुलेशन कम नहीं होगा, तो जैन बैंक खुल सकता है। अगर जैन बैंक खुल जाएगा तो ईस्ट बंगाल बैंक भी खुल जाएगा, मोहनबागान बैंक भी खुल जाएगा, बैनर्जी बैंक भी खुल जाएगा, पुरोहित लोग का भी बैंक खुल जाएगा। और हम लोग हरिभूमि के साथ आके एक पेज खोलकर, जो बहुत कम दाम में हो जाएगा, उनके साथ एग्रीमेंट करके भी कर सकते हैं। बट आई विल श्योरली
एडवाइस जो अनिल लोधा जी अपने वकील लोग के साथ इस 100 रुपया उठाकर अपने ही बैंक अकाउंट में, माने अनिल लोधा जी के बैंक अकाउंट में, या तो वो 3 जन का एक छोटा सा कमेटी अपने आप ही बना लें, बनाकर वेबसाइट खोलकर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर हम लोग जो लोग 29 आदमी 29 तो स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से आएंगे 30-40 आदमी, उनका नाम प्रपोजल में रख दें। तो जिस दिन सब कुछ लॉकडाउन उठ जाएगा उस दिन जाके हम लोग साइन करके नोट माने उसके अंदर आ जाएंगे। जब ये ठीक तरह चलने लगेगा तब 29 तो और बैंक अकाउंट उसी के नाम से हम लोग 29 तो स्टेट में खोल देंगे, ताकि बंगाल का अपना अलग अकाउंट रहेगा। जो काम होगा 20% फॉर डेवलपमेंट, 20% सैलरी एंड ऑनलाइन रनिंग ऑफ ऑनलाइन चैनल एंड 60% सोशल वर्क के लिए। तो मंथ के एंड में एक थोड़ा सा पैसा ही रहेगा। तो लोग जो हम लोग इंडस्ट्री खोलेंगे, जो लोग भी ये कमिटीज़ में आ रही है इंडस्ट्री, उनके हाथ में देते जाएंगे। तो हम लोग का ये जो कमिटी है चेंज होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा। वो लोग इंडस्ट्री चलाते ही रहेंगे और इंडस्ट्री का पैसा वापस भी नहीं करना पड़ेगा। 1% ऑफ द सेल वापस भेजना है। तो भारतवर्ष को अगर बड़ा करना है, बच्चे से लेके बूढ़े तक हम लोग को एक होना पड़ेगा। आइदर आप 100 रुपये दीजिए, 300 रुपये दीजिए, फार्मर लोग के पास खड़े होइए, शहीद के फैमिली के पास खड़े होइए, बट द rotation of the wheel should start and the money of middle class should belong to middle class. That will be our fight. Thank you very much. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना काल और संकट, आखिर जनता के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा? दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ ने निसंदेह लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। महामारी की चिंता ने लोगों का जीवन बदल कर रख दिया है। सामान्य व्यक्ति को डर और खौफ ने अपने घेरे में ले रखा है। ऐसे में जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित था, उसके हालात बद से बदतर हो गई है। दुनिया पिछले कुछ महीनों में अपने घरों में बंद है। लोगों की आवाजाही थमी हुई है। लोग इस महामारी के समय अकेले हैं। आमतौर पर बीमार व्यक्ति का इलाज अस्पतालों में ही होता है, लेकिन कोरोना महामारी ने सारा सिस्टम बदल कर रख दिया है। अब तो अपना डॉक्टर स्वयं बनो जैसी कहावतें समाज में जोर पकड़े हुए हैं। ऐसे में तनाव, डर और जीवन को बचाने की जद्दोजहद ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है। WHO ने बहुत पहले ही कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करते हुए लोगों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति आगाह किया था। WHO ने कहा था कि कोरोना संकट में उपजे लॉकडाउन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द कई तरह की दूसरी समस्याएं जैसे चिंता, डिप्रेशन और भय बढ़ा सकते हैं, जिससे लोगों में कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है। निश्चित तौर पर आम जनजीवन में इस तरह की समस्याओं का विस्तार हुआ है, जिसका गंभीर परिणाम आत्महत्या के ग्राफ में दर्ज होती बढ़त के दौर पर देखा जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो 93% तक आत्महत्याएं मानसिक कारणों से ही होती है, भले ही हम सामाजिक दायरे में इसे कोई और नाम क्यों न दें। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के अध्ययन के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण देश में मानसिक रोगों के मरीजों की संख्या 15 से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोरोना से जुड़ी मुख्य 3 वजहें हैं जो लोगों को बेहद परेशान कर रही हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर, लॉकडाउन से जन्मा अकेलापन और सोशल रिसेशन, नौकरी और बिजनेस को लेकर अनिश्चितता। किसी भी वैश्विक महामारी का इतिहास इस बात की तस्दीक करता है कि महामारी से केवल मानव शरीर ही प्रभावित नहीं होता, अपितु लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति से लेकर सामाजिक ताने बाने को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यदि समाज आर्थिक ताने बाने में बदलाव होंगे तो निश्चित तौर पर मानसिक स्थिति पर गहरा संकट पैदा हो सकता है, जैसा मौजूदा दौर में हो रहा है। खौफ के इस वातावरण में अवसाद, चिंता, पैनिक अटैक, तनाव, एंजाइटी इत्यादि की समस्या काफी बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में जब WHO ने कहा है कि भारत में तकरीबन
7.5% लोग किसी न किसी तरह से मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। समाज और सरकार की चिंता और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। संकट के इस दौर में सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज और सरकार को समाजार्थिक मापदंडों को पूरा करने के लिए बेहतर खाका तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान और भविष्य में भी आसानी से इस तरह की समस्याओं से निपटा जा सके। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस बेंगलुरु के एक सर्वे के अनुसार भारत में कम से कम 13.7% सामान्य जनसंख्या किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, जिसमें से 10.6% लोगों को तत्काल किसी मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पर बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें 10% जनसंख्या को कॉमन प्रॉब्लम है और 1.9% लोगों को सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। ऐसे ज्यादातर मामले ग्रामीण इलाकों की जगह शहरों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। जानकारी और तत्काल राहत न मिल पाने के कारण 60% लोग ऐसे हैं जो मानसिक अस्वस्थता में किसी भी तरह की दवा नहीं करा पाते। भारत में मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता का अभाव है। ज्यादातर मामलों में मानसिक रोगी को पागल ही समझा जाता है। समाज का गलत बर्ताव कई बार मानसिक विकार को छुपाने के अहम कारण बनते हैं। लोग समाज की अवहेलना के डर से मानसिक रोगी से जुड़ी जानकारी अपने परिवार से भी साझा नहीं कर पाते, जिसके कारण छोटी मोटी समस्या भी विकराल रूप ले लेती है। WHO की माने तो विश्व में सबसे ज्यादा मानसिक रोगी भारत में ही है, इसलिए भारत को वर्ल्ड की मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री की संज्ञा भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि देश में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जितने मनोचिकित्सक की आवश्यकता है उतने नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक 1 लाख लोगों के लिए देश में मात्र 1 मनोचिकित्सक हैं, जबकि WHO के मापदंडों की बात करें तो प्रत्येक 1 लाख लोगों पर कम से कम 3 मनोचिकित्सक होने चाहिए। हालांकि भारत सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य समस्या से लड़ने के लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए हैं, जैसे सन 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करना, सन 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट का लागू किया जाना, सन 1996 में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत, सन 2014 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा करना, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 की जगह 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का लाया जाना। विडंबना इस बात की है कि सरकार इन कोशिशों के बावजूद भारत में अभी भी मानसिक स्वास्थ्य समस्या किसी चुनौती से कम नहीं प्रतीत होता। मौजूदा परिस्थिति में इस बात का प्रमाण देती है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या का पुख्ता हल सरकार को मिलकर ही तलाशने होंगे। महामारी से जुड़े मुद्दों पर लोगों का निरंतर काउंसलिंग, सलाह आदि के माध्यम से समझ मजबूती करनी चाहिए। लोगों में उपजे भय और तनाव को कम करने के लिए योग, मेडिटेशन, शिक्षा आदि के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। तभी सही मायने में हम महामारी के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुस्तैदी से लड़ पाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।